Hi friends, once again I welcome you all at Crack Grade B. We have already covered government schemes from Ministry of Women, Child and Development, Ministry of Education, Ministry of MSMEs, and today we are going to start and we will cover government scheme from this Ministry of Finance, and this is part 1, and we will learn this government scheme in the revision format. I mean to say here is that अभी तक हमने जो गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ी हैं उसको हम एक रिवीजन की तरह इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. सो अवर फर्स्ट स्कीम फॉर टुडे इज अटल पेंशन योजना. फ्रेंड्स, आप सभी ने इस स्कीम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा. अटल पेंशन योजना को जो लॉन्च किया गया था वो थी 9th May of 2015 and it was launched from Kolkata. Now what is the aim of this scheme? Why government has launched this scheme? This scheme was launched to provide a defined pension depending upon the contribution and its period with focus on all citizens in unorganized sector. So this scheme focus on unorganized sector. What are the eligible conditions to join this scheme? First of all, if anyone wants to join this scheme, he should have a bank account. Second, all Indian in age group of 18 to 14 years of age can join this scheme, being he should be a unorganized sector workers. इसकी एग्जिट एज है 60 years and the minimum period of contribution for the subscriber under API would be 20 years or more. Central government will contribute 50% of the total contribution or ₹1,000 per annum, which is lower, and each eligible subscriber account for a period of 5 years. From financial year to 2015-16 to 2019-20, and who joined the period between 1st June 2015 to 31st December 2015 and who are not the members of any statutory social security scheme, who are not income tax payer. So these are the eligibility. Age 18 से 40 साल, इसमें गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 50% और 1000 जो भी कम होगा. मैक्सिमम एज इज 60 और इसमें वही अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने पहले कोई भी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को ज्वाइन नहीं किया हो और वो इनकम टैक्स पेयर भी ना हो. इसके बेनिफिट क्या है? कोई भी अगर इस स्कीम को सब्सक्राइब करता है तो उसको फिक्स मिनिमम पेंशन मिलेगी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 years, और जब तक उसकी डेथ नहीं होती या depending upon the contribution which itself would be based on the age of joining API. तो एज के बारे में ये बार बार क्यों बोल रहा है? 18 से 40 साल की इसने बोला है कि जो बंदा 18 साल का मिनिमम हो और 40 साल तक मैक्सिमम हो उसको ज्वाइन कर सकता है. तो जो 40 साल में ज्वाइन करेगा उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा एज कम्पेयर टू 18 years पर्सन. तो उस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से भी इसमें जो है वो पेंशन डिसाइड होगी. अब इसको रेगुलेट कौन करता है? So this PFRDA, Pension Fund Regulatory and Development Authority, is the regulating authority of this scheme. अब गवर्नमेंट ने इसमें पेनल्टी भी दी है कि अगर कोई कंट्रीब्यूशन में कुछ भी गड़बड़ करता है तो उस केस में क्या होगा कि भाई अगर जिसका कंट्रीब्यूशन 100 रुपीज पर मंथ तक का है तो ही विल, उसका जो पेनल्टी होगी 1 रुपीज पर मंथ की होगी. 100 से 500 के बीच में है, 1012 to 500 के बीच में है, उसके 2 रुपए पर मंथ की कंट्रीब्यूशन. 5 rupees per month contribution होगा 501 to 1000 and 10 PM for contribution pure 1001. So these are the charges and fees and the overdue interest for non-payment or delayed payment of prescribed contribution amount shall be levied on the subscriber of this Atal Pension Yojana. मैक्सिमम मैंने आपको बताया कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके अंदर. अगर क्वेश्चन आता है तो 1000. अगर वो जो पर्सन है जिसने इसको सब्सक्राइब किया है, अगर वो 1001 जिसका
ये जो कंट्रीब्यूशन है 1000 पर एनम का, ये गवर्नमेंट की लिमिट है, इसमें कोई भी पर्सन जो है 1001 से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। और अगर कोई पेनल्टी, उसका कोई डिफॉल्ट है, उसने प्रीमियम नहीं दिया है, नॉन पेमेंट किया है या डिलेड पेमेंट किया है, और अगर वो 1001 से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके ऊपर 10 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। अच्छा, इसमें हम आगे एक चीज़ देखेंगे कि इससे पहले एक स्कीम हुआ करती थी, स्वावलंबन स्कीम। तो जब ये स्कीम 2015 में आई तो उसके बाद जो उसके एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर थे जो इस स्कीम के अंदर थे, एक्चुअली वो स्कीम और ये अटल पेंशन योजना काफ़ी हद तक सेम बेनिफिट दे रही थी, तो वो क्या करेंगे, वो जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं इस स्कीम के, वो ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो जाएंगे इस अटल पेंशन योजना में। कब? अगर वो उस स्कीम से ऑप्ट आउट नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उस स्कीम से एपीआई स्कीम में ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद इसके कुछ बेनिफिट्स क्या है? इसके जो बेनिफिट्स हैं, टैक्स बेनिफिट हैं अटल पेंशन योजना के, दीज आर सेम एज द नेशनल पेंशन स्कीम के जो बेनिफिट हैं और जो नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। आपको पता होगा कि नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो 50,000 पर मंथ का मतलब उसमें जो सेक्शन है, जो 1,50,000 की आपकी सेविंग जो गवर्नमेंट देती है इन द केस ऑफ मैन, तो उसमें ये 50,000 का एडिशनल बेनिफिट देगा अंडर सेक्शन 80C के। ठीक, तो ये टैक्स बेनिफिट है। दूसरी बात, आफ्टर द, इसमें कुछ उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी भी दी हुई है कि आफ्टर द डिवाइस ऑफ बोथ द सब्सक्राइबर एंड द स्पाउस, द नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर shall be entitled to receive the pension wealth as accumulated till the age of the 60 of the subscriber. Now, एक flexibility, one of the flexibility is also given under this scheme. State governments are enabled to provide additional voluntarily contribution to APY subscriber of their state. Now, how you can apply for this scheme, or a person from unorganized sector can apply for this scheme? The first is, application may be submitted to any one of the following enrollment agency, like all the banks including nationalized bank, private bank, banking companies, regional rural banks, cooperative banks, either directly or through the following enablers. फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां पर याद रखना। अगर क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा बैंक है जो अटल पेंशन योजना को फैसिलिटेट नहीं कर सकता या उसको उसके लिए अनऑर्गेनाइज वर्कर जिनके लिए एलिजिबिलिटी है वो सब्सक्राइब नहीं कर सकते, तो फ्रेंड ज़्यादातर बैंक हैं, सारे बैंक हैं, नेशनलाइज, प्राइवेट और बैंकिंग कंपनीज, रीजनल रूरल बैंक, सारे के सारी चीज़ें हैं, वो ये जो बैंक हैं इसमें जाके आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। दूसरा, एनेबलर्स कौन कौन हो सकते हैं? ऑल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, दैट इज सर्विस प्रोवाइडर एंड एग्रीगेटर which are governed under the institutional architecture of national pension scheme are appointed and are appointed by this pension fund regulatory and development authority will be work as the facilitator of this scheme. Why this PFRDA? आपने देखा होगा, it is a regulating authority for implementation of this scheme. तो जो भी एजेंसी है दिस PFRDA जो अपॉइंट करेगा वो इस स्कीम के को फैसिलिटेट करने में, एनेबल करने में हेल्प करेंगे। नाउ, द बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट और एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग एग्रीगेटर्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन who are appointed as enablers by the bank. So बैंक अगर चाहे तो इनको जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट होते हैं, नॉन बैंकिंग एग्रीगेटर्स होते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको भी एनेबलर के रूप में काम करवा सकता है। अब इसके बाद देखते हैं इसमें एग्जिट और विड्रॉल कैसे हो सकता है। मान लो कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें आपको एग्जिट करना पड़ रहा है, विड्रॉल करना पड़ रहा है, तो इस केस में सब्सक्राइबर हु हैज अवेल्ड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन अंडर एपीवाई चूज टू वॉलंटरली एग्जिट API बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ दिस 60। अगर 60 साल से पहले आप निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? He shall only be refunded the contribution made by him only। जो गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, जो आपने खुद कंट्रीब्यूट किया है वो आपको वापस मिल जाएगा विद नेट एक्चुअल इंटरेस्ट अर्न ऑन हिज कंट्रीब्यूशन आफ्टर डिडक्टिंग द अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। क्योंकि किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए कुछ मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, वो डिडक्ट करने के बाद आपको आपके कंट्रीब्यूशन का पैसा वापस मिल जाएगा। सेकंड केस, द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एंड द इंटरेस्ट अर्न ऑन द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन
shall not be returned to any subscriber। अब मैंने आपको बताया था कि स्वावलंबन स्कीम्स के जो लोग हैं वो इस पे माइग्रेट हो गए हैं ऑटोमेटिकली अनटिल जब तक कि वो इसको ऑप्ट आउट नहीं करते हैं। तो स्वावलंबन स्कीम क्या थी वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, इस स्कीम को अंदर गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 1000 पर ईयर टू ईच नेशन पेंशन स्कीम दैट इज स्वावलंबन अकाउंट and it was opened in the year 2010-13 for 5 years। इसमें जो एलिजिबिलिटी थी इट इज 18 to 60 years। हमारी इसमें कितनी थी, आपने ध्यान दिया था? इसमें आपकी एलिजिबिलिटी थी 18 to 40 years। तो इस नई वाली स्कीम में जो इन्होंने 20 years की एज को कम कर दिया। इसके बाद एलिजिबल इंडिविजुअल्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैन ओपन एन अकाउंट थ्रू देयर एग्रीगेटर एंड गेट इंडिविजुअल सब्सक्राइबर अकाउंट। इसकी भी जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी थी वो थी PFRDA। अच्छा, इसमें एक और चीज थी, इसमें मिनिमम अमाउंट जो है रिक्वायर्ड पर एनम और पर कंट्रीब्यूशन एंड सब्सक्राइबर इज फ्री टू चूज अमाउंट ही शी वांट्स टू इन्वेस्ट इन एवरी ईयर। तो इसमें मिनिमम अमाउंट नहीं था, लेकिन इसमें मिनिमम अमाउंट कितना दिया है इन लोगों ने? इसमें मिनिमम अमाउंट के बारे में भी कोई बात नहीं की गई है, बट इसमें इन्होंने मिनिमम अमाउंट को इसको फ्री रखा था। Now, subscriber should not be covered under any other social security scheme. It is the fact, क्योंकि ये स्कीम आपने जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लॉन्च की है, तो अगर आप ऑलरेडी सोशल सेक्टर की किसी स्कीम का फायदा उठा रहे हो तो आप अटल पेंशन योजना का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो जो अदर सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं वो हो सकती हैं आपकी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, द कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। तो ये सारे जो एक्ट हैं, अगर इसमें कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बंदा इससे कोई बेनिफिट ले रहा है तो वो इस नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं है। एंड द एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर अंडर दिस स्कीम विल ऑटोमेटिकली माइग्रेटेड टू APY अनलेस दे ऑप्ट आउट। राइट, सो दिस वाज द स्कीम दैट इज नोन एज द नेशनल पेंशन स्कीम, जो मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक, तो फ्रेंड्स अभी हमने कौन सी स्कीम खत्म की? अटल पेंशन योजना। अब हम देखेंगे जल्दी से फटाफट, ये है आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और ये जो लॉन्च हुई थी ये हुई थी 9 मई 2015 को। इसका स्कोप ऑफ कवरेज है ऑल सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर जिनकी एज 18 से 70 साल के बीच में है इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स विल बी एंटाइटल्ड टू ज्वाइन एंड आधार वुड बी द प्राइमरी KYC फॉर द अकाउंट। इसकी जो कवरेज होगी वो 1 साल के लिए होगी, स्ट्रेचिंग फ्रॉम 1 जून टू 31। अब इसके अंदर कवरेज क्या क्या है वो देखो आप जल्दी जल्दी। इसमें अगर कोई पर्सन जो इस स्कीम के अंदर इंश्योर्ड है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। सम इंश्योर्ड इज 2 lakhs of rupees एंड इफ ही लॉस बोथ आईज, लॉस ऑफ यूज ऑफ बोथ द हैंड्स और फीट एंड दीज आर इररिकवरेबल मीन्स ऑपरेशन के बाद भी उसकी आंख को, उसके हाथ को, उसके पैर को सही नहीं किया जा सकता, उस केस में उसको सम इंश्योर्ड मिलेगा 2 लाख रुपए। फ्रेंड्स ये जो लाइन है ये इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस केस, दिस इज एप्लीकेबल फॉर दिस केस। इन लास्ट केस इफ टोटल एंड इररिकवरेबल लॉस of sight of one eye or loss of use of one hand, then in this case he will be liable to get sum insured of rupees 1 lakhs of rupees। इसके बाद ये इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? इट इज रेगुलेट बाय द पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। राइट, इसमें प्रीमियम क्या है? आपके अकाउंट से जाएगा द अमाउंट ऑफ ₹12 per annum per member will be deducted and it will be deducted automatically before 1st June of every year. So you have to maintain minimum 12 of rupees of amount as a balance in your account to run this scheme. Right. If you are not maintaining this much of amount, then your coverage will be terminated. So these are the 3 conditions in which case the coverage will be terminated. The first one is on attaining the age of 70 years, because this scheme is covering a person between age of 18 and 17. Then closure account with the bank of insufficiency, अगर 12 रुपए से कम मेंटेन करोगे तब भी टर्मिनेट हो जाएगी भाई, उसका पैसा नहीं कटा 1 साल का तो वो क्यों आपको कवर करेगा। एंड अगर कोई अलग इशू है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है तो उस केस में भी इसको टर्मिनेट किया जा सकता है। नाउ आपकी थर्ड स्कीम है दैट इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। फ्रेंड्स, व्हेन दिस स्कीम वाज कम्स इनटू पिक्चर,
Then the many schemes were running before launching of this scheme. So this scheme is the merger or amalgamation of the previous scheme. So what were the previous schemes? First, in October 2007, the government has launched this Aam Aadmi Bima Yojana. It is a life insurance scheme for the poorest of the poor people in our country, and it is covering the people between the age of 18 to 59 years. The premium is 200 per annum per member for a coverage of 30,000, out of which 50% will be subsidized from the Social Security Fund. Then, in case of rural landless household, remaining 50% premium shall be borne by the state government, union territory, or in case of other occupational group, the remaining 50% of premium shall be borne by the nodal agency or member or the state government or union territory. Under this, the person will get 30,000 of rupees due to its natural death. Natural death means not the suicide, not other thing. If his death is natural, then he will be liable to get 30,000 of rupees by paying 200 per annum. Then in 2017, what government has done? The government has merged or converged the Aam Aadmi Bima Yojana with Prime Minister Jeevan Jyoti Bima Yojana and the Prime Minister Suraksha Bima Yojana. So these are the two schemes which we have discussed. So this there are two conditions. The first, Aam Aadmi Bima Yojana beneficiaries will be divided into two groups. The first group, the person who have age between 18 years to 50, and the other from 50 to 19 years. So in this case, the first group, that is 18 to 15 years, they will be enrolled under this Jeevan Jyoti Bima Yojana and Prime Minister Suraksha Bima Yojana, and it will be named as the Converge PMJJY. And in the second, and the total premium will be in this case 342, that is 330 plus 12 rupees, and 142 more than the Aam Aadmi Bima Yojana. And in the second group, 51 to 59 years, and it is a closed group, and it will converge Aam Aadmi Bima Yojana. It is known as the Converge Aam Aadmi Bima Yojana. So in this case, they will not be covered under this Prime Minister Jeevan Jyoti Bima Yojana due to some constraint of age, and they may be enrolled under this Prime Minister Suraksha Bima Yojana by payment of an additional 12 rupees per annum by the respective state government. So these are the convergence. Now, what are the features of our scheme, that is Prime Minister Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana? It was also launched in 9th May 2015 from Kolkata. Scheme will give you a cover of 1 year, renewable from year to year basis, and insurance scheme offering life insurance cover for death due to any reason. Now, scope of coverage, all saving banks account holder in the age of 18 to 15 years in the participating banks. So this is the difference. What were the age? In this case, this is 18 to 70, but under this Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, the age they are offering 18 to 50 years. So in this case, when these schemes are being merged or converged, the person between the 18 to 15 years of age are eligible to get benefit of this Prime Minister Jeevan Jyoti Bima Yojana. But the person who have age between 51 to 59, they are not able to get benefit of this scheme. So these are the cases which I have discussed with you. And now the scope of coverage I have already told you. The period of coverage, 1 year from 1st June to 31st May, and year to year basis you can renew this scheme if you want to renew this scheme by paying this much of premium. What are the benefit? The person is getting 2 lakhs of rupees on a member's death due to any reason. In case member is covered under Prime Minister Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana with LIC of India or other company through more than one account, and premium received by the LIC inadvertently, insurance cover will be restricted to rupees 2 lakhs, and premium paid for duplicate insurance should be
लाइबल टू 40 डेज। सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि अगर आप 2 बार आपका प्रीमियम कट गया तो गवर्नमेंट भैया आपको 1-2 ही लाख देगी, वो बाकी प्रीमियम कटा है वो फोरफिट हो जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी डेथ हो जाती है और आपने 2 प्रीमियम भरे हैं लेकिन आपको मिलेगा 2 ही लाख रुपए, दूसरा प्रीमियम वो आपको नहीं देगा, वो मान ही नहीं रहा है इसको ना। दिस स्कीम इज रेगुलेटेड बाय और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय थ्रू एनी LIC and other life insurance company willing to offer the product, similar terms with the necessary approval and tie-up with the bank's post office for this purpose. So it means all the life insurance, general life insurance companies are eligible to regulate or implement this scheme. What are the premium under this scheme? Remember, this is 330 and it should be automatically deducted from your account before 1st June. You have to minimum, ये आपके जो अकाउंट में 330 रुपीज का एक मिनिमम बैलेंस होना चाहिए बिफोर 1st June टू कंटिन्यू दिस स्कीम. And if individual who exit the scheme at any point may rejoin the scheme in future years by submitting a declaration of good health in the prescribed format. भाई अगर आप किसी वजह से निकल गए हो तो आप क्या करो, जाके अपनी गुड हेल्थ का एक फॉर्मेट दो गवर्नमेंट को, कहेगी हाँ भैया स्वस्थ है, इसको दोबारा से इस स्कीम को ज्वाइन करा दो. इसमें कुछ प्रोविजंस हैं डिलेड पेमेंट के कि भाई अगर आपने एनरोल किया है जून में तो जुलाई और अगस्त में आपका फुल एनुअल प्रीमियम जो होगा वो 300 होगा. अगर आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में किया है तो वो प्रियोरिटी बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, वो 250 होगा. और जितना लेट ज्वाइन करोगे उतना आपका प्रीमियम कम होगा, उतनी ही कवरेज कम होती चली जाएगी. ठीक है. टर्मिनेट कब होगा भाई? ये टर्मिनेट होगा ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 55 ईयर्स. देखो इन्होंने एज ली है 18 to 50 ईयर्स, बट ये टर्मिनेट कर रहे हैं 55 ईयर्स पर. दूसरा, अगर आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाता है बैंक, पोस्ट ऑफिस और इनसफिशिएंट बैलेंस किसी भी वजह से, तो भी आपका ये जो है स्कीम टर्मिनेट हो जाएगी. एंड इफ द इंश्योरेंस कवरेज इज क्लेसीज ड्यू टू द इनसफिशिएंट बैलेंस और ड्यू डेट, सो आप ऑटोमेटिकली इस स्कीम से निकल जाओगे. भाई 330 आपको अपने अकाउंट के अंदर चाहिए ही चाहिए. तो आज इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स. उसके बाद मैं कुछ और स्कीम्स को डिस्कस करूंगा जो आगे बची हैं, और हम इसको अगले 2 या 3 वीडियोस में और कवर करके खत्म करेंगे. फिर इसके बाद हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है. So friends, ये हमारे स्टार परफॉर्मर है. They have performed very well in 2020 exam, and we are offering this course of CB grade A at rupees 2499, and we are offering combo course of RBI grade B and CB grade B at 3499. For more update, you can visit our website, that's www.crackgradeb.com. We are covering all these topics in our RBI grade B course, and we are giving this course at rupees 2499. So friends, till then, thank you and happy learning. पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए.